Good morning, all of you. In this lecture, we will discuss about the different laws of the electrolysis, and these laws are given by the scientist, that is the Faraday. So these laws are called as the Faraday's laws of electrolysis. There are two main laws which are given by the scientist Faraday, that is the Faraday's first law of electrolysis and the Faraday's second law of electrolysis. And then we will proceed towards certain numericals which are also from the NCERT book, which are very important numericals, very basic numericals. So let's start today's lecture on the Faraday's law of the electrolysis. So the first law of the Faraday law of electrolysis is that कि अगर हम बेसिक बात करें Faraday law of electrolysis से पहले कि आखिरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या थी, उसमें हमने देखा क्या था। तो हमने ये पढ़ा था पहले कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास देखो इलेक्ट्रोड्स हैं। वो इलेक्ट्रोड्स जो हम लेते थे वो आपकी अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स भी हो सकती हैं, नॉन अटैकेबल भी हो सकती हैं। नॉन अटैकेबल को आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस नो रिएक्शन, मींस द इलेक्ट्रोड व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द ऑक्सीडेशन इन द रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी इलेक्ट्रोड जिनके खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तो प्रोसेस चलेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के वो आयंस होंगे जो इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और उन आयंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, लेकिन खुद इन इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा। तो ऐसी इलेक्ट्रोड्स को आप कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। और वो इलेक्ट्रोड जो खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर दें, ऐसी इलेक्ट्रोड जिनके खुद का भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाए, खुद की इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो आप उन्हें कहते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। तो ये बेसिक हमने लेके चले यहाँ पे कि कंटेनर है, उसमें हमारे पास नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं, और हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, फॉर एग्जांपल NaCl मोल्टन हमने ले लिया। ये डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस हुए, Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव आयन, एंड फॉलोड बाय इफ वी कनेक्ट द बैटरी थ्रू वायरिंग। हमने कनेक्शन देखो यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हमारी प्रोसेस चली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले बताया था ऑक्सीडेशन चलेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीडेशन जहां चले उसे आप एनोड कहते हैं। राइट हैंड साइड में रिडक्शन चलेगी, मिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और आप ऐसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। After that, the migration of the ions will take place, and by the imaginary line, we can divide the whole of the container into different compartments. On the right-hand side compartment, that called as the cathodic department, having the cathode. On the left-hand side, we have the anodic department, having the anode, where the oxidation takes place. Now, when we connect the battery with these electrodes, means when we switch on the battery, then what will happen? Then the process takes place that called as the electrolysis. Then what will happen during the electrolysis? As we already discussed in the previous lecture, the positively charged ion, that is the Na positive ion in that particular case, will move towards the cathode. Means the Na positive ion will gain the electron and get converted into the Na positive, and that Na positive get deposited on the cathode, while the other ion, that is the Cl negative ion, having the negative charge on it, get migrated towards the anode, where the oxidation takes place. Means the Cl negative ion will lose the electron and get converted into the Cl atom by the primary change, and that Cl atom formed after the primary change is an unstable species. Now it further undergo the secondary change and get converted into the Cl2. Now what will happen totally in the electrolysis process? The decomposition of the electrolyte takes place, the discharging of the electrolyte takes place. But when the electrolysis takes place, when the discharging takes place, when the decomposition of the electrolyte takes place, it will takes place if we connect the electrodes with the battery. When we pass the current in the electrolyte, and that electrolyte must be the molten or the aqueous electrolyte. या तो molten हो या वो aqueous होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए, कोवलेंट कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड कभी आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि आयनों का ही यहाँ पे माइग्रेशन होना होता है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो मींस ओवरऑल आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसी प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच द डिस्चार्जिंग और द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्वस और द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस ऑन पासिंग करंट थ्रू इट, जब हम इसके अंदर से करंट पास कर दें। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो हमने पहले आपको बताया था, जिसके काफी सारे एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या बताते हैं, किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं? ये जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इट गिव्स द रिलेशनशिप इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड and the amount of the substance which get deposited on the electrodes on anode and on at cathode. means cathode और anode के ऊपर
कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, कितना डिपॉजिट हो गया जब हमने बाहर से करंट पास किया। करंट मींस कितना चार्ज पास किया, तो कितना चार्ज पास करने से कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो गई है एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, एट द एनोड और द कैथोड, इसके बारे में जो रिलेशनशिप क्या है, उस चीज की जो इंफॉर्मेशन देंगे वो कहलाएंगे आपके फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो फेराडे साइंटिस्ट ने जो लॉ दिए वो 2 लॉज थे। देयर आर 2 लॉज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस, about these relationship, about the amount of the electricity passed and the amount of the substance deposited on the electrode. About that relationship we have 2 laws. So the first law, which is given by the Faraday scientist, that is called as the Faraday's first law of electrolysis. What it states is, first law ने क्या कहा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था, इसने एक बड़ी सिंपल सी बात कही। उसने क्या कहा कि अगर आप बाहर से बैटरी को हटा देंगे, नो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, नो सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड और द एनोड। ये तो बेसिक फैक्ट है, हम सभी जानते हैं कि अगर आप बाहर से बैटरी नहीं लगाएंगे, आप करंट पास नहीं करेंगे, आपने इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया, मोल्टन स्टेट में भी ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आपने ले लिया, लेकिन जब तक आप करंट पास नहीं करेंगे, नो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, नो माइग्रेशन ऑफ द आयंस टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मीन्स नो सब्सटेंस विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड एंड द एनोड। कोई सब्सटेंस भी डिपॉजिट नहीं होगा। सब्सटेंस डिपॉजिट कब होगा? सब्सटेंस डिपॉजिट तब होगा जब आप बाहर से बैटरी कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरी बात यह आ गई कि बैटरी तो आपने कनेक्ट कर दी, करंट तो आपने पास कर दिया, चार्ज तो आपने पास कर दिया, फिर सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा? मींस सबसे पहला लॉ ये कहता है कि आप जितनी देर तक करंट पास करेंगे, लगातार मास डिपॉजिट होता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अगर आपने कुछ पल के लिए एक चार्ज पास किया और फिर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, तो आपका लेस मास विल बी डिपॉजिट ऑन द एनोड एंड द कैथोड। इफ वी पास मोर चार्ज, मोर करंट फॉर द मोर टाइम, then more mass will be deposited on the cathode and the anode. That is the first law of electrolysis. So what it states that the mass of the substance deposited at the electrode is always directly proportional to the amount of the electricity passed. कितना करंट आपने पास कर दिया, means the mass is directly proportional to the charge pass. M is directly proportional to Q. Q is here is the charge इन कॉलम्स में जो हम लेंगे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम लगा दें, तो M इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज ए कांस्टेंट। तो दूसरे शब्दों में हम क्या लिखेंगे? M इज इक्वल टू जेड, क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि आई क्या होता है? आई इज द करंट इन एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू चार्ज पास पर यूनिट टाइम। आई होता है आपका, हम पहले ही सीख चुके हैं कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाय टी, दैट इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम या चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द करंट इन एम्पियर। तो क्यू किसके इक्वल हो गया? टी को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो फार्मूला आपका बन गया एम इज इक्वल टू जेड आई टी, जो आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल के अंदर आप यूटिलाइज करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हमारे पास, देखो अब हम क्या करते हैं, इफ वी हैव द टू डिफरेंट कंडीशंस, इफ द Q1 चार्ज इज पास्ड, देन द मास डिपॉजिट इज एज्यूम्ड टू बी द M1 ग्राम। आपका जो मास जो डिपॉजिट हो गया, बोलो वो कितना हो गया? दैट इज द M1 ग्राम। M1 ग्राम मास डिपॉजिट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इफ द Q2 चार्ज इज पास्ड, मींस मोर चार्ज इज पास्ड, then the mass deposit will be more, that amount will be the M2 gram। तो वो M2 ग्राम आपका मास डिपॉजिट हो गया, that is the equation number 2। अगर अब हम क्या करें, नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 बाय द इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, मींस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से आप डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? M2 डिवाइडेड बाय M1 is equal to Q2 divided by Q1. So that is the formula. इसमें से 3 चीजें आपके न्यूमेरिकल में गिवन मिलेंगी, आउट ऑफ M2 divided by M1 is equal to Q2 by Q1 जो है, इसमें से 3 फैक्टर्स आपके गिवन मिलेंगे एग्जाम में, कोई एक फैक्टर आपसे निकलवा लिया जाएगा। So that is the first law of electrolysis। हम कुछ न्यूमेरिकल भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। So that is a simple law, that is the first law of electrolysis, जिसने बड़ी बेसिक बात बताई कि अगर आप बाहर से करंट पास नहीं करेंगे, नो मास विल बी डिपॉजिट ऑन द कैथोड और द एनोड। अगर आप चार्ज पास करेंगे बाहर से तो मास डिपॉजिट हो जाएगा, ज्यादा देर तक ज्यादा चार्ज पास करेंगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। दैट इज वेरी बेसिक फैक्ट, एज ए लेमैन भी आप उसको बड़ी आराम से याद कर सकते हैं कि M इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड।
तो आपका ये फार्मूला बन गया m इज इक्वल टू ZIT, और फॉर दो डिफरेंट कंडीशन हमने लगाई तो फिर आपने देखा m2 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू क्या बन गया आपका Q2 डिवाइडेड बाय Q1. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज द फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इसमें क्या किया, ये भी बड़ा बेसिक लॉ है. इसमें सिर्फ क्या किया, इसमें ये देखा गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, देखें इसमें हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोड ली, सेकंड इलेक्ट्रोड ये नॉन अटैकेबल है, सेकंड इलेक्ट्रोड ली वो भी आपकी नॉन अटैकेबल है. इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया NaCl मोल्टन, मान लीजिए हमने ये ले लिया. उसके बाद हमने इसमें जो आयंस प्रोड्यूस होंगे कौन से होंगे, मोल्टन लिया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे. उसके बाद हमने एक बैटरी ली, बैटरी से हमने कनेक्शन किया, पॉजिटिव एंड देखो ये नेगेटिव एंड, थ्रू वायरिंग हम करेंगे. देखो पॉजिटिव एंड को हमने किससे कनेक्ट किया, देखो एक इलेक्ट्रोड से जो लेफ्ट हैंड साइड में थी जिसे आप एनोड कहेंगे, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. नेगेटिव एंड को किससे कनेक्ट किया आपने, जो राइट हैंड साइड था इसका, जिसे आप कैथोड कहेंगे, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सिमिलरली मान लीजिए हम एक कंटेनर और लेते हैं, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी रिएक्शन चलेगी, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड कहेंगे. राइट हैंड साइड में रिडक्शन चलेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस आप उसे कैथोड कहेंगे. सिमिलरली इफ वी कनेक्ट, इफ वी टेक अनदर सेल, हम एक सेल और ले लें और उसी सेल को सेम बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, मींस जैसे हमने पहले वाली सेल में बताया कैथोडिक डिपार्टमेंट है, एनोडिक डिपार्टमेंट है, और इस सेल के अंदर क्या होंगे, देखो जो आयंस माइग्रेट होंगे, देखो Na पॉजिटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड, द और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, मींस Na विल बी प्रोड्यूस्ड. Na डिपॉजिट हो गया, किस चीज के ऊपर हो गया बोलो, पहली सेल के अंदर देखो ये Na डिपॉजिट हो गया, कहां पे, कैथोड के ऊपर. सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन जब माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द एनोड तो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, और लूज करके Cl बनेगा, और Cl के बाद बोलो क्या बन जाएगा आपके, देखो Cl atom by the primary change, Cl combine with another Cl atom to undergo the secondary change to give the Cl2. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो ये तो हमने देखा फर्स्ट सेल के अंदर. तो वे Cl2 प्रोड्यूस कहां पे हुई आपकी, एनोड के ऊपर. Na प्रोड्यूस कहां पे हुआ, Na डिपॉजिट कहां पे हुआ, आपके कैथोड के ऊपर. इफ नाउ वी टेक अनदर कंटेनर, इफ वी टेक अनदर सेल having the two electrodes, on the left hand side same non-attackable electrode, that is the anode. On the right hand side another electrode, that is the non-attackable electrode हमने ली, that is the cathode. Now if you take the another electrolyte, that is the CuCl2 in the molten form, means containing the two type of ions. One is the Cu2 positive ion, आप यहाँ पे correction कर लेना, that is the Cu2 positive ion. Other one are the Cl negative ion. If we make the connection, देखो वायर्स के थ्रू कनेक्शन, हमने पॉजिटिव एंड को किससे जोड़ा बोलो, यहाँ पे एनोड से ही, और नेगेटिव एंड को बोलो किससे जोड़ा आपने, यहाँ पे कैथोड से ही. मींस सेम बैटरी ली है, मींस सेम करंट पास होगा इन बोथ ऑफ दी सेल, मींस सेम बैटरी है, सेम करंट पास होगा दोनों की दोनों सेल के अंदर. ऐसे ही आप एक तीसरी सेल भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन. यू कैन टेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स and you can connect these different large number of cell with the same battery. Means जो Faraday ने second law दिया उसमें यही बात तो हम कहने वाले हैं, when the same current, when the same charge is passed in the different electrolytic cell, अगर हम सेम करंट सेम बैटरी से सेम चार्ज पास कर दें इन द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो फिर क्या होगा, तो फिर कितना मास डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड्स, उसकी रेशियो हमें देखनी है. तो वो रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डिपेंड करती है आपके किस चीज के ऊपर, इक्विवेलेंट मास के ऊपर. अभी हम वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम ये सारा बता दें. देखो सेकंड सेल के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और उस रोड को कहते हैं एनोड. राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगा, उस रोड को आप कहते हैं कैथोड, और राइट साइड में कैथोडिक डिपार्टमेंट सिमिलरली, और लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, दैट इज द एनोडिक डिपार्टमेंट. सिमिलरली जो रिएक्शन चलेगी, द Cu2 पॉजिटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड एंड दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन, गेट कन्वर्टेड इनटू द Cu सॉलिड व्हिच गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. कितना डिपॉजिट हो गया, यही तो हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से जानना चाहते हैं. सिमिलरली द Cl नेगेटिव आयन गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एनोड, it will lose the electron, it will lose the electron, get converted into the Cl by the primary change. Now the unstable Cl atom combine with another unstable Cl atom to give the stable Cl2 gas by the secondary change, and that Cl2 will produce at the anode. Means हमने एक आयन कॉमन लिया है यहाँ पे, बोलो दोनों में क्या है, मोल्टन NaCl में Cl नेगेटिव आयन, CuCl2 में Cl नेगेटिव आयन. मीन्स जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा
वो दोनों में एनोड के ऊपर वो तो कौन होगा, वो तो होगा आपका बोलो कौन, Cl2 गैस। अब हम कंपैरिजन करने वाले कैथोड के ऊपर, क्योंकि वहां पे डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, तो किस रेशो में हुआ, तो वही हमें देखना है। क्योंकि NaCl के अंदर सोडियम डिपॉजिट हो गया तो कितना हुआ, क्योंकि सेम करंट पास हुआ है। सिमिलरली आपके CuCl2 के अंदर सेम करंट पास करने से कॉपर डिपॉजिट हुआ तो कितना हुआ, तो इसीलिए तो ये हमारा लॉ आ गया। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी, स्टेटमेंट ये है कि व्हेन सेम करंट इज पास्ड, व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the ratio of the mass deposited will be equal to the ratio of their chemical equivalents। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनकी रेशो ले लें, बोलो रेशो किसकी लेनी है, M2/M1 is always equal to the E2/E1। M2/M1 is always equal to बोलो क्या होगा, E2/E1। मीन्स यही हमने लिखा, द रेशियो ऑफ द मास डिपॉजिटेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको आप थोड़ा घुमा के कैसे लिख सकते हैं, घुमा के आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप M1 को ऊपर ले जाएं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे E2 को आप नीचे ले आए, तो आपका फार्मूला देखो कुछ ऐसे भी बन जाएगा। बोलो आप क्या लिख देंगे, M1 डिवाइडेड बाय बोलो क्या बन गया, E1 इज इक्वल टू बोलो क्या बन गया, M2 डिवाइडेड बाय E2। तो M1 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय E2 में जो रेशो है M बाय E की, वो बोलो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। बोलो वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट होगी। सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस M1 बाय E1 इज इक्वल टू M2 बाय E2 इज इक्वल टू M3 बाय E3। व्हाट इट मींस, इट मींस कि जो M बाय E की जो रेशो है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी व्हेन द सेम करंट इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसके ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो बड़ी बेसिक सी बात है यहाँ पे कि कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। दैट इज द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम कुछ बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 1 फैराडे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो बताएं आप। तो 1 फैराडे आप किसे कहते हैं, तो 1 फैराडे की स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए देखो पहले हमें एक बेसिक का पता होना चाहिए। आप ये बताएं, व्हाट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। द चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम्स। Now, what is the charge carried by 1 mole of electrons? 1 mole कितनी क्वांटिटी होती है आपने पढ़ा था, बताएं शाबाश जल्दी से। That is 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23। क्वांटिटी को 1 मोल कहते हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मींस द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दें दो चीजों को, तो जो नियर अबाउट हम राउंड ऑफ करके आंसर लिखेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 96500, 96,500 कूलम। ये वैल्यू आ गई, दैट इज द चार्ज विच इज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो 6.023 into 10 to the power 23 जो क्वांटिटी है, इसी को तो बोलो आप क्या कहते हैं, दैट इज 1 मोल, दैट इज द 1 मोल। और जो अभी ये चार्ज आया है दैट इज 96500 coulombs, that is the charge which is carried by 1 mole of electrons, that is carried by 6.023 into 10 to the power 23 electrons। इसी को आप कहते हैं 1 फैराडे, इसी एक को आप क्या कहते हैं, दैट इज 1 फैराडे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो आमतौर पे गलती कर दी जाती है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 फैराडे, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे जैसे आपको दिख रहा है कूलम्स इज द यूनिट ऑफ 1 फैराडे। नो, आप क्या कहेंगे, द करेक्ट यूनिट ऑफ द फैराडे इज कूलम पर मोल। आप जरूर ध्यान दें कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फैराडे, तो ये कंपटीशन में काफी बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि दैट इज द चार्ज व्हिच इज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द यूनिट ऑफ फैराडे इज कूलम पर मोल। तो आप इसे कूलम पर मोल के ऊपर आप टिक करके आए, कभी भी आप कूलम भी ऑप्शन में मिलेगा, आप कूलम के ऊपर टिक करके ना आए, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे। ये अभी हमें यूज भी करनी है अपने काफी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे डेफिनेशन ये सीख ही ली कि आप 1 फैराडे किसे कहते हैं। अब हम इसकी देखो स्टेटमेंट लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देते हैं, देखो यहाँ पे। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 फैराडे, द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द 1 फैराडे। अब
1 फेरेडे इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया। दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन देखो काफी बार आया है आपके कंपटीशन में, ये लिखा मिलता है 1 फेरेडे इज इक्वल टू, ऑप्शन में लिखा आता है, देखो ऐसे लिखा आता है ऑप्शन में, जैसे पहली ऑप्शन तो मान लीजिए यही आ गई एन ई, सेकंड ऑप्शन लिखी आ जाती है एन बाय ई, थर्ड ऑप्शन ऐसे लिखी आ जाती है आपके सामने ई बाय एन, एंड सो फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए लिखी आ गई आपके सामने 1 डिवाइडेड बाय एन ई, ऐसे करके ऐसे आ जाता है कि 1 फेरेडे इनमें से किसके इक्वल है। तो 1 फेरेडे किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा क्यों, अभी आप ऊपर देखें जो हमने 96500 कूलम्स जो वैल्यू हमारी आई वो कैसे आई थी, देखो ध्यान से, वो वैल्यू आई थी हमने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया था, तभी तो ये 1 फेरेडे बना था। मींस जो 1 फेरेडे जो 1 एफ बना ये कहां से आया, देखो एक तो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -90, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई, देखो ये ई है यहाँ पे। सेकंड क्वांटिटी क्या है 6.023 इंटू 10 पावर 23, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर, देखो ये एन हो गया। तो एन मल्टीप्लाइड बाय ई है, ऊपर भी हमने वही किया था, एन की वैल्यू क्या थी 6.023 इंटू 10 पावर 23, उसको मल्टीप्लाई किए किससे किया था, स्मॉल ई से, दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19, तभी आपका ये एफ आया था। वही तो पूछा गया कि एफ किसके इक्वल होता है, तो एफ इज इक्वल टू एन ई। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन गए हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर पूछे जाते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन दो क्वेश्चन क्या थे जो भी आपको बताया, एक तो ये कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फेराडे, तो आप किस पे टिक करेंगे, बोले लिखते शाबाश जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही, कुलूम पर मोल। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया मैंने, 1f किसके इक्वल होता है, ऑप्शन ये लिखिए है, बोलो करेक्ट आंसर क्या है, एन ई इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रख के चले। आमतौर पे आप टिपिकल क्वेश्चंस को याद कर जाते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। सो दैट इज द रॉन्ग डायरेक्शन, आपकी वो रॉन्ग डायरेक्शन होती है कि जो चीज याद करनी चाहिए आप उनको करते नहीं। तो आप बेसिक चीजों को कभी भी ना भूलें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपके पास कंटेनर, देखो एल्यूमिनियम आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर क्या कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें Al3 पॉजिटिव आयन अकेले रखे हो, नो। हमेशा हम कोई सॉल्ट लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें दोनों तरह के आयन्स होंगे, आपके पॉजिटिव आयन भी होंगे, नेगेटिव आयन्स भी होंगे, लेकिन एक पार्ट करके क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, जैसे अभी पूछा गया। मींस कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर Al3 पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस तो यही है, नेगेटिव आयन का कोई जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इस के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो मींस जो आपके पास Al3 पॉजिटिव आयन होते हैं उसकी रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन मींस कैथोड की तरफ ही तो ये माइग्रेट होंगे, तो फिर क्या होगा, देखो Al3 पॉजिटिव आयन विल टेक द इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे विल टेक। देखो एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं आप ऐसे कभी भी ना बोले, हम भी कई बार जल्दबाजी में गलत बोल देते हैं ऐसे कि 1 Al3 पॉजिटिव आयन। जब भी हम किसी रिएक्शन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो मोल्स की फॉर्म में ही पढ़ते हैं, मींस 1 मोल ऑफ द Al3 पॉजिटिव आयन, ऐसे हम बोलेंगे। तो इससे पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो 1 होता है तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन विल गेन 3 moles of electron, 3 moles of electron to give 1 mole of Al which get deposited on the cathode, जो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब इसी बेसिस पे हम देखें तो 1 मोल ऑफ द Al3 पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, बोलो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब जो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे, दैट इज 3 फेराडे। अभी तो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे आप 1 फेराडे कहते हैं। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करेंगे उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ 3 फेराडे। और 1 फेराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलम्स। तो 3 फेराडे किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम्स। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 3 फेराडे। तो 3 फेराडे के ऊपर इतना चार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो हमारा क्वेश्चन, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन की रिडक्शन कर दें तो कितना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये रिएक्शन क्या कहती है, ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन ने क्या कहा, बैलेंस रिएक्शन ने ये कहा कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन, बोलो कितना होगा। ये आपके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ द Al3 पॉजिटिव आयन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू 3 फेराडे, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। और निकालना कितने मोल ऑफ के लिए है, 1 मोल के लिए ही था, तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1.5 मोल ऑफ, 3 मोल्स ऑफ, या 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन, फिर तो हम एक कदम आगे चलते, फिर तो हम लिखते, मान लीजिए 2.5 मोल होते, देखो इस 1 मोल की जगह क्या होते, फॉर द 2.5 मोल्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ
यहाँ पे बोलो क्या आ जाता है 2.5 मोल्स। तो अब क्या लिख देते हैं, तो अब 3 से ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 96500 और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं आप, दैट इज 2.5। तो जो भी आपका आंसर आता वो उतने कूलम्स, वो आपका आंसर आ जाता। दैट इज द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन। मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर लेते। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 mole of MnO4 negative ion into the Mn+2 ions। MnO4 नेगेटिव कहां से आया, आपने नाम सुना है ना, जिसे लाल दवाई बोलते हैं, जो चोट के ऊपर भी लगाते हैं, जो आपके क्या करते हैं, जो वाटर टैंक होती है उसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप कहते हैं, KMnO4। तो KMnO4 के अंदर से आया है MnO4 नेगेटिव। तो जब इसकी रिडक्शन की Mn+2 आयन के अंदर, तो क्या हुआ, कैसी चली रिएक्शन, वो लिखते हैं सबसे पहले MnO4 नेगेटिव गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो किसमें, Mn+2 आयंस के अंदर। ही देखो ये कन्वर्ट हो गए, और प्लस जब भी ये कन्वर्ट होते हैं, अब आपको कोई ये कहे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आपने कैसे सीखा है, बोलो बैलेंस करना, जल्दी बताएं। एसिडिक मीडियम में ही आपका KMnO4 एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एसिड का काम करता है। तो एसिडिक मीडियम होता तो आप बोलो बैलेंस कैसे करेंगे, आप ये बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो MnO4 नेगेटिव है, इसमें ऑक्सीजन कितनी आपको दिख रही है, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम। तो रूल चल पड़ा, सबसे पहला काम होता था बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट द ऑक्सीजन एटम, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम्स। वो Mn है, Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड। उसके बाद हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में MnO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन दिख रही है, तो राइट हैंड साइड में जितनी ऑक्सीजन थी लेफ्ट हैंड साइड में, O4 में 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें। देखो प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिए। ऐसा करने से अब नेक्स्ट स्टेप आती है H को बैलेंस करना। तो H बोलो कितने हो गए, वाटर के अंदर कितने H है, 4 2 8, तो 8H हो गए। क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई H आपको दिख रहा है, नो। तो मींस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में जितने H दिखे, बोलो कितने H इधर, देयर आर 8H। तो लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड कर दें। देखो हमने 8H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिए। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द, बोलो किसको, बैलेंसिंग ऑफ H एटम। उसके बाद आप चार्ज को देखें, चार्ज, अब चार्ज देखें राइट हैंड साइड में, बोलो टोटल चार्ज कितना है, दैट इज +2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज +2 ही होना चाहिए। +2 कैसे हो, देखो यहां से 8H पॉजिटिव है, तो देखो +8 चार्ज हो गया, हमें तो +2 ही रखना है, तो माइनस का +6 होना जरूरी है, तभी तो आंसर +2 बनेगा, तभी तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो फिर क्या करें, MnO4 के ऊपर तो नहीं है -6, MnO4 के ऊपर तो देखो -1 चार्ज है, तो फिर उसके बाद -5 चार्ज कहां से आए, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। देखो आप देखें ध्यान से, टोटल देखो यहाँ पे -5 चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। नाउ इक्वल टू का साइन हम बीच में लगा सकते हैं, दोनों साइड में इक्वलाइज हो गया चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो +8 है, -1 -5, तो यहाँ पे बोलो क्या बन गया, +2। राइट साइड में भी बोलो क्या है, +2, मींस चार्ज भी बैलेंस हो गया, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। सो दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ ऑफ द रिएक्शन। जो ये रिएक्शन थी, इसका जो दैट इज द 1/2 ऑफ द रिएक्शन। ये कंप्लीट सेल नहीं है, ये 1/2 ऑफ द रिएक्शन हमने लिख रखी है सिर्फ, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं पे ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पे रिडक्शन, यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे पार्ट में होगा। खैर हमें उस पार्ट को देखना ही नहीं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मींस ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया कि रिएक्शन को देखो बैलेंस कैसे किया जाता है, ये करना आपको आना चाहिए। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ द MnO4 नेगेटिव। मिस बैलेंस देखा तो MnO4 के एक ही मोल है, देखो 1 लगा देते हैं, शुरू में 1 ही है। अब हम क्या करें, उसी टाइप से आप देखें 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव आयंस है, अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस हाफ रिएक्शन। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पे, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज कैरी करते हैं 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5 फैराडे। 5 फैराडे के ऊपर कितने कूलम ऑफ चार्ज होता है, 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। तो 5 फैराडे के ऊपर 5 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। मींस उसी टाइप से अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि दैट इज द चार्ज
which is required for the reduction of 1 mole of MnO4 negative ion according to that balance half reaction is equal to 5 multiplied by 96500 कूलम। हमें निकालना भी 1 मोल के लिए था, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जवाब आपके पास। कोई और होता कि 2.5 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव आयंस के लिए बताएं एंड सो ऑन, तो आप फर्दर एक स्टेप और करते जैसे हमने पहले बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन इनटू द Mn+2 आयंस। सो दैट इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेंगे यहाँ पे, उसको बड़े ध्यान से आप रीड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा होगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O into O2। तो देखो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं उसी टाइप से। देखो हमने H2O लिखा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द O2, ये O2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ बैलेंस द रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करके बताएं कैसे करेंगे आप। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये आपकी, तो मीन्स आप क्या करेंगे, वही बेसिक रूल, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो तो है ही नहीं। उसके बाद बैलेंस, बोलो कौन से एटम को, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। आप राइट साइड में देखें O2 के अंदर देखो 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है। तो क्या करें, तो मीन्स आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो मीन्स आपने 2 लगा दिया, सिंपल। मीन्स प्लस H2O करके लिख दें। देखो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, या तो आप ऐसे लिख दें, देखो मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो इधर आपकी 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, उधर 1 कम है तो 1 H2O ऐड कर दें आप। मीन्स ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता बाय एडिंग द H2O मॉलिक्यूल। तो H2O प्लस H2O को आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2H2O। तो वही हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं यहाँ पे 2H2O ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 लगा देंगे H2O से पहले। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, नाउ बैलेंस द H एटम। अब आप देखें ध्यान से, इधर कितने H एटम है, 2 2 जा 4, इधर कोई H है ही नहीं राइट हैंड साइड में। नाउ ऐड द H पॉजिटिव आयन ऑन द राइट हैंड साइड। हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन, क्योंकि 4 H की कमी है, तो प्लस 4 H पॉजिटिव आयन आपने ऐड कर दिए। अब उसके बाद नाउ बैलेंस करें चार्ज को। चार्ज को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो बोलो कैसे बैलेंस करें, टोटल चार्ज देखें, बोलो इधर कितना चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस साइड में, राइट हैंड साइड में हमेशा चार्ज को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। कई बार बच्चे देखो गलती करते हैं बहुत छोटी छोटी, वो ये कहते हैं सर इधर +4 है ना, हम उधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। देखो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे। देखो मान लीजिए आपने गलती कर दी, लेकिन फिर चेक कर लें। देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपने उधर ऐड कर दिए तो इधर -4 हो जाएगा, और इधर कितना चार्ज है दूसरी साइड में +4, तो क्या इक्वल हो गया, नो नहीं हुआ इक्वल। तो मीन्स हम क्या बताते हैं कि बेटा आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, इधर तो 0 है, तो दूसरी साइड में +4 है, तो उसको कैसे 0 बनाए, बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ऐड द 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन मींस -4, तो +4 -4 0 हो गया ना वर्क। मींस दोनों साइड में चार्ज भी इक्वलाइज आपने इस टाइप से कर दिया बाय एडिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रिएक्शन है इसके दौरान 2 मोल्स ऑफ H2O molecules undergo the oxidation to give the 1 O2 molecule along with the production of 4 H positive ion and the 4 mole of electrons। अब क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O हो, अगर वो O2 में कन्वर्ट हो जाए तो इसको 1 मोल की फॉर्म में लिख देंगे। 1 मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोलो कैसे, हमें वाटर को ही देखना है। तो देखो अगर आपके पास 1 मोल वाटर होता, देखो अगर 2 मोल्स वाटर होते तो कितना फेराडे इलेक्ट्रॉन यूज होता, दैट इज द 4 फेराडे। बोलो कितना चार्ज इन्वॉल्व होता, 4 फेराडे। लेकिन 1 मोल के लिए हाफ कर दिया, तो बोलो कितना फेराडे, दैट इज द 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दैट इज द 2 फेराडे। 2 फेराडे के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। बस हो गया आपका जवाब क्लियर। मींस द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 फेराडे, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। या अगर आप ऐसे ना लिखना चाहते तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को आप कहते, क्या कहते, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम पहले ये लाइन लिखते 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखते, दैट इज 4 फेराडे। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 फेराडे डिवाइडेड बाय 2 कर देते आप, तो 2 फेराडे, फिर भी देखो यही आ जाता, आपका आंसर यही आना था। मींस आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अपने ईज के लिए कैसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3.10 है, ये आपकी NCERT बुक के अंदर से है। क्या स्टेटमेंट है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours,
then how many electrons would flow through the wire? तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? तो बड़े बेसिक फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं. एम्पियर में करंट गिवन है, मींस करंट की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर. दैट इज द करंट व्हिच विल फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर. The time for which that particular current will flow, that is the 2 hours. 2 hours को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देखो 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स बन गए, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड्स बन जाएंगे. So these are the total seconds. The time for which the 0.5 ampere current will flow through the metallic wire. 7200 सेकंड हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. How many electrons would flow? तो उसके लिए पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया. Q is equal to IT आप जानते ही हैं. हम सबसे पहले चार्ज निकाल लेंगे. तो Q is equal to I की वैल्यू क्या है? 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम कितना है? 7200 सेकंड. आपका आंसर कितना आ गया? दैट इज 3600 कूलम इज द चार्ज which will flow through the metallic wire. Then how many electrons get involved? आपके वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास 3600 कूलम चार्ज होता है? ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे जब हमने आपको सिखाया था कि 96500 जो कूलम जो चार्ज होता है, अगर वो फ्लो कर रहा हो वायर के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें? आपने पढ़ा था ना कि द 96500 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराडे. That is the charge which is carried by 1 mole of the electron. Means 1 mole means 6.023 into 10 power 23 electron involved होते हैं. Means 96500 charge flows through a wire, then the number of electrons flowing are, that is the 6.023 into 10 power 23 electrons. That is 1 mole electrons. That is the basic definition of the 1 Faraday. Now the 1 coulomb charge, if the 1 coulomb charge flows, then the number of electron will flow that are equal to, divide में कर देंगे 96500 को. हमें चाहिए कितना? अगर 3600 कूलम चार्ज पास हो रहा होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते? तो आप मल्टीप्लाई कर दें. सो दैट इज द आंसर. अब मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²² इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड when the 3600 coulomb charge will flow through that metallic wire for 2 hours. So that is our next question. आप कैलकुलेशन जरूर अच्छे से दोबारा अपनी करके देखें. कहीं पे कोई हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक मेरे से हो जाए, तो आप कैलकुलेशन के ऊपर यानी अपना ध्यान जरूर दें, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर छोटी मोटी मिस्टेक अगर मेरे से मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में अगर हो गई हो तो. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many coulombs are required for the reduction of 1 mole of dichromethane into बोलो किस में कन्वर्ट होगा? डाइक्रोमेटाइन. कभी Mn+2 में कन्वर्ट हो सकते हैं? नो. तो ये यहाँ पे गलती से लिखा गया तो डाइक्रोमेटाइन है, ये कन्वर्ट हो गए क्रोमियम आयन के अंदर Cr+3. तो आप ये क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लेंगे. तो बोलो ये कौन है यहाँ पे? दैट आर दी Cr+3 आयन. तो ये आप करेक्शन कर लेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर. तो जब इसमें कन्वर्ट हो तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना, देखो मैंने आपको कई बार सिखाया है. तो बोलो आप कैसे करेंगे आप बैलेंस इसको? जल्दी बताएं. शाबाश, कौन बताएगा मुझे? पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. देखो हमने क्रोमियम को तो पहले ही बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने पहले, 2Cr3+. अब उसके बाद बोलो किसको बैलेंस करते हैं? Now balance the oxygen atom. How many oxygen atom are present on the left hand side? 7. On the right hand side there is no oxygen atom. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो आपको 7 ऑक्सीजन दिख रही है डाइक्रोमेटाइन में, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे. राइट हैंड साइड में देखो +7H2O देखो आपने ऐड कर दिए. क्लियर हो गया? यहां तक बैलेंस हो गया. अब इसके बाद बोलो किसको बैलेंस करें? नाउ बैलेंस द H atom. How many H atom are there on the right hand side? That is 14. देखो 7H2 है, 14H है. और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी H नहीं, तो 14H पॉजिटिव आप ऐड कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देखो हमने ऐड कर दिया. नाउ बैलेंस द चार्ज. चार्ज को बैलेंस करें. बोलो कैसे करें? आपके राइट हैंड साइड में बोलो कितना चार्ज दिख रहा है? 2 3 जा 6. देखो +6 चार्ज है क्रोमियम आयन की वजह से. तो दूसरी साइड में भी +6 ही होना चाहिए. कैसे करें? देखो 14H पॉजिटिव है तो +14 हो गया. Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज तो -2 हो गया. अब बताएं क्या करें? हमें +6 आंसर लाना है, तो ये +14 है. +14 में से कितना माइनस करें? 8 अगर माइनस कर दें. 8 कैसे हो? देखो ये -2 तो हो गया. अब -8 कैसे हो? मींस आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इधर, तो मींस -6 भी आ गया. देखो नाउ द टोटल आंसर इधर भी बोलो कितना आ गया? दैट इज +6 इज इक्वल टू +6. मींस चार्ज भी बैलेंस हो गया. मींस ये जो हाफ सेल है आपकी, इसको हमने बैलेंस कर दिया है. बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए. दीज आर द बेसिक रूल ऑफ द बैलेंसिंग.
आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी, आप किसी भी मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करें, लेकिन बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, उसके बिना आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो देखो हमने बैलेंस कर दिया, अब आपका क्वेश्चन क्या है वो देखें। 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन है, देखो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल ही है। देखो हमने लिख भी दिया 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इन्वॉल्व। 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 6 फैराडे चार्ज होगा उसपे। 6 फैराडे मींस हाउ मच कूलम चार्ज इज इन्वॉल्व, 6 multiplied by 96500 coulomb charge is involved during the reduction of 1 mole of dichromate ion into the Cr3 positive ion. So that is our question. ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट देखो लिख दिया, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम ऑफ द क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड by the electrolysis of molten NaCl when a current of 1 ampere is passed for the 15 minutes. तो ये आपका जो बेसिक था फेराडे का वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने इलेक्ट्रोलिसिस पहले पढ़ ली मोल्टन NaCl की। देखो क्या थी आपके पास, देखो ये कंटेनर है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स थी, इसमें आपने मोल्टन NaCl डाल दिया, ये डिफरेंट आपकी बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट है, कनेक्शन आपने किया, वायरिंग की, आयनों की मूवमेंट होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द एनोड, रिडक्शन रिएक्शन एट द कैथोड। नाउ दिस आयन गेट माइग्रेटेड, Na पॉजिटिव आयन, देखो 2 डिपार्टमेंट होंगे, राइट हैंड साइड में कैथोडिक, लेफ्ट में एनोडिक। नाउ द Na पॉजिटिव आयन, क्योंकि हमें यही तो देखना है कि क्लोरीन कितनी डिपॉजिट होगी, लेकिन राइट हैंड साइड में तो सोडियम आयन गेट माइग्रेटेड, they get convert the Na positive ion will gain the electron, get converted into Na, and that Na get deposited on the sodium. लेकिन ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अब हम चलते हैं अपने एनोड की तरफ। Now the Cl negative ion will migrate towards the anode, they will lose the electron, undergo the primary change to produce the बोलो क्या Cl atom. Now this Cl atom will combine with each other to give the Cl2 gas that will be produced at the anode. Anode के ऊपर प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी। अब बड़े ध्यान से देखें, जैसे अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल किए थे, मींस अगर हमारे पास, आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन में देखें Q इज इक्वल टू IT हमारा फार्मूला होता है, I की वैल्यू 1 एम्पियर गिवन है, टाइम मिनट्स के अंदर है, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट को हमने किस में लिया, 15 मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या कर दिया 60। तो I मींस 1 एम्पियर, 1 वैल्यू पुट कर दी, टाइम 15 मिनट्स, 50 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से चार्ज आपका कितना आ गया बोलो, 15 6 90, 900 कूलम चार्ज विल बी पास्ड। मींस जो अभी हमने कहा 1 एम्पियर करंट पास किया, 15 मिनट्स के लिए पास किया, बट इट मींस हाउ मच कूलम चार्ज विल बी पास्ड in the molten NaCl, that is the 900 coulomb charge is passed. तो जब 900 कूलम चार्ज पास कर दिया हमने, तो उस वक्त कितना क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं जो नीचे हमने लिखी थी। मींस अगर हमारे पास 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, देखो रिएक्शन बैलेंस है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ Cl2 ही प्रोड्यूस हुई है, तो कितना फेराडे, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज बोलो कितना, 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होता है 71 ग्राम। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है 17। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37 होता है। इनकी जो रेशियो होते हैं 3:1 होती है, देखो आपको सिखाया गया है। ये तो इनका मास नंबर है। इसका जब एटॉमिक मास हम निकालते हैं तो वो लगभग कितना आता है, इनका जब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू अबंडेंस, बोलो कैसे निकालते थे अकॉर्डिंग टू द अबंडेंस। देखो आपको सिखा रखा है, दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस में 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय द टोटल अबंडेंस, दैट इज 3 + 1, एंड दैट आंसर कम्स आउट टू बी, बोलो कितना आंसर आएगा, दैट इज 35.5। यहाँ पे Cl2 प्रोड्यूस हुई, तो एटॉमिक मास है एक क्लोरीन का वो 35.5 है। 35.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज 71 ग्राम। अब आप समझ गए होंगे ये 71 ग्राम हमने क्यों लिखा। उसके बाद आपके जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने इन्वॉल्व हुए, दैट इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट इन्वॉल्व। देखो ये बैलेंस रिएक्शन कहती है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हाउ मच फेराडे आर इन्वॉल्व, 2 फेराडे आर इन्वॉल्व। हाउ मच चार्ज इन्वॉल्व, 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम चार्ज इज इन्वॉल्व। मींस रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस रिएक्शन क्या कहती है, बैलेंस रिएक्शन ये कहती है कि व्हेन 2 फैराडे, दैट इज द 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू दैट मोल्टन NaCl, देन द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड विल बी, बोलो कितना 71 ग्राम।
अगर 1 कूलम चार्ज हम पास करें तो कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस होगी? 71 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 ग्राम। बोलो कितना चार्ज हमने पास किया? जो गिवन क्या है हमारी क्वेश्चन के अंदर, अगर हम 900 कूलम चार्ज पास कर दे, क्योंकि हमने 1 एम्पियर का करंट पास किया, 15 मिनट्स के लिए किया, उसमें हमने Q इक्वल टू IT का देखो फार्मूला लगाया था, और उसके द्वारा हमने जो करंट और टाइम को हमने चार्ज में कन्वर्ट कर लिया, 900 कूलम चार्ज। तो वही अब हम लिख देंगे, नाउ इफ द 900 कूलम चार्ज इज पास, देन द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 900 कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 0.331 ग्राम, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। ये तो क्लोरीन के बारे में पूछा था। सिमिलरली क्वेश्चन आपके कैथोड के ऊपर भी आ सकता था। देखो सेम अगर यही क्वेश्चन आपका आता, देखो आपको बता दें, देखो इसको देखो मैं यहां से थोड़ा क्लियर करता हूं, यहां से जो चीजें हमने लिखी थी, और मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम विल बी डिपॉजिटेड, फिर बताएं शहबाज आप कैसे करते? तो देखो ये सोडियम वाली रिएक्शन हमने देखो यहाँ पे लिख रखी है, देखो बैलेंस है, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 फेराडे है, देखो यहाँ पे 1 फेराडे मींस 1 फेराडे मींस 96500 कूलम, आपने कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। सोडियम का मतलब बोलो कितना? 23 ग्राम होता है। क्लियर हो गया? तो मींस 900 कूलम चार्ज पास करें। अब हम आपको बता रहे हैं अगर सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, अगर ये पूछ लिया जाता तो अब क्या कहते हैं इसी टाइप से कि अगर 96500, if the 96500 coulomb is charge is passed, then the amount of sodium deposited on the cathode will be 23 gram of the sodium will be deposited. If the 1 coulomb charge is passed, then the sodium deposited will be, बोलो कितना? 23 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या कर देंगे? 96500 आप डिवाइड में कर देंगे, दैट इज दैट मच ग्राम ऑफ द सोडियम विल बी डिपॉजिटेड। लेकिन कितना कूलम चार्ज पास हुआ? वो गिवन था 1 एम्पियर करंट पास किया था 15 मिनट्स के लिए, मींस अगर 900 कूलम चार्ज पास हो जाए तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप 900 से देखो 23 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या है आपका? 96500 और मल्टीप्लाइड बाय बोलो 19। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी ग्राम आएगा तो इतना सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, बोलो कहां पे? एट द कैथोड। तो यानी ये क्वेश्चन में पूछा गया क्लोरीन के बारे में, हमने सोडियम के डिपोजिशन के बारे में भी आपको बता दिया। हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए, क्लोरीन के बारे में ना पूछे, तो मींस वट एवर में बी द साइड, चाहे वो एनोड के ऊपर पूछे चाहे कैथोड के ऊपर पूछे, रिएक्शन बैलेंस सबसे पहले आप करें, उसके बाद बेसिक चीजों को ध्यान रखें, आपका आंसर आपके पास होगा। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So that is all about the different questions on the electrolysis। हमने आज फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा। 2 लॉ थे आपके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बेस्ड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी हमने लिए आपके लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन दीज डिफरेंट लॉज एंड द वेरी सिंपल बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस। So thank you.